Good morning to one and all present here. I am Samir Dadlani. On behalf of my team, I pay sincere gratitude for this opportunity. We are here to discuss the case study of OYO on your own. Let's come to the point. Indian hotel industries. Uh, Indian hotel in tourism and hospitality industries has emerged as one of the key drivers of growth amongst the service sector in India. Now let's come to the point budget room segments. What are budget room segments? But OYO realized that physical infrastructure's improvement had to be accompanied by educate staff training and accommodation to ensure a great customer services. The hotel services staff at budget hotels are the bottom of the skill chain in India. Now let's talk about segments organized and unorganized. What is organized segments? Organized segments traditionally consist of branded hotels with a star rating of 3 and above players in the established 4 and 5-star luxury hotels. Segments include Indian operators that had worldwide presence such as ITC and Taj. समीर, Alongside, बेटा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब मुझे बेसिकली बता दें। यहाँ पे आप केस में से स्टोरी रीड कर रहे हैं, केस sir, स्टडी सामने रखा है। I will explain you, sir. प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। The organized means the hotels are which are on a large scale, which deals with the luxury rooms, who actually targets the billionaire or some luxury hotels, and who provides the proper rooms, which they don't target on the budget traveler. They actually look for the people who actually afford that. सो So that's the लेट मी रेज अ पॉइंट हियर। यू मीन टू से जो बजट होटल्स दे रहे हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होते? No, sir, they are organized, but we are talking about the established hotel like Taj and ITC. तो They deals with the अनऑर्गेनाइज luxury. क्या होता है फिर? व्हाट इज The अनऑर्गेनाइज? unorganized means the segments consist of budget hotels that had basic rooms, who don't have a proper room services, and who deals with the budget traveler things, who are not providing the proper satisfaction to the customers. ओके, प्लीज कंटिन्यू अहेड। Yeah. So, introduction of OYO. Let's talk about CEO Ritesh Agarwal. Ritesh Agarwal was born in Bisam Cuttack in Odisha. He graduated from St. John Senior Secondary School and moved to Delhi. Akash, please change the slide. Samir, why don't you tell us about the time when he was born? Sir, I don't think so. It's mandatory to know what time he born. Why is it mandatory when he was born, where he was born, from where he had his schooling and all? Why are we concerned? Is that a case issue? We should be specifically talking about relevant facts and figures. We are talking about the case study. जो भी इश्यूज आते हैं उस पर अपन फोकस करें। ये जितनी भी कहानियां हैं बाकी चीजों को छोड़ दें। सेंट जॉन में पढ़े कि क्राइस्ट चर्च में पढ़े, दैट इज इमटेरियल फॉर अस। व्हाट मेक्स फोकस हियर, वो बिजनेस कैसे कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है, चैलेंजेस क्या है, Okay, केस sir. कंटेक्स्ट क्या है। Agarwal started a budget portal, Oracle Stays, for the booking budget hotels. It was accepted into the Accelerate program by Venture Nursery in September 2012, and later was one of the winner of the program Thiel Fellowship. I repeat, Thiel Fellowship program. The company after that launched in 2013 May. Now founded at Gurugram. In August 2017, Ritesh Agarwal, CEO and the founder of Gurugram-based OYO Online. Yes, sir. कैमरे की तरफ देखें बेटा। अब मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन का जवाब दें। केस का Yes, कंटेक्स्ट sir. क्या है? व्हाट्स द कंटेक्स्ट ऑफ द केस? So we are. So sorry, I didn't hear you. केस का कंटेक्स्ट क्या है बेटा? रेड बस का केस किया था ना? Yes, sir. व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस केस? Sir, I haven't attended that red bus case. ओके, स्टिल kindly summarize this case in say 2 minutes So time. we are basically talking about the case study of OYO. That OYO deals with what OYO targets whom people, who type of a people, and बताइए ना, what type. तो आप अपने शब्दों में 2 मिनट के अंदर पूरा बताइए। सार, केस का सार बताइए। व्हाट्स द कंटेक्स्ट? Sir, we are talking about the what OYO deals with. He ओके, deals with the budget traveler. Okay, he deals with the he actually provides the budget ये hotels. बजट ट्रैवलर्स होते क्या हैं, इसको थोड़ा सा समझाएं प्लीज। Sir, who have a budget issue. Like if I'm going to travel, there will be some budget for me. So I like make a budget for a hotel that I would probably choose this type of a hotel in this budget.
So I'll Okay. prefer that hotel. So Oyo provides that type of a hotel in budget, that I need a luxury hotel. Okay. I ठीक need है. everything Okay. in that hotel. Now, So what I kind would. of offering Oyo is giving to its customers? The Oyo is giving to his customer luxuries in budget hotel. Okay. Promises, what he promises, like amenities. क्या है Amenities. वो promise बताइए please. What So promise he Oyo has promise made to he its so he promises everything, like luxuries, hygiene, uh, comfort, high cleanliness, uh, location. So the Oyo provides that. Okay. Apart from that, how do they generate revenue through this? Means हो क्या रहा था स्टार्टिंग में क्या हो रहा था? से मेरा होटल है एंड The मेरे Oyo होटल के कमरे नहीं बिक रहे तो ओयो मेरी कैसे मदद कर रहा है? प्लीज एक्सप्लेन ऑन दिस एस्पेक्ट. Oyo actually acquire some amount of some numbers of room from the owners. Okay, then he pays some commission, negotiable. He pays some negotiable commission to the hoteler, and ask them ki it will be only booked by my own app only. So that's how they are making revenue. कमरे अच्छे नहीं है, कमरों की हालत बहुत खराब है, तब भी ओयो आपसे कमरा लेके अपने पोर्टल पे शो करेगा? तो कमरों की हालत डिपेंड करता है, वो ऑडिट करवाएगा पहले रूम्स को, देखेगा कि इफ इट्स एलिजिबल और नॉट, फिर उसको अपने मार्केट डायनामिक्स को देख के अपने ऐप पे अपलोड करेगा. मेरा प्रश्न दूसरा है, कमरे जर्जर हालत में हैं, द बैकग्राउंड Okay. इज नॉट गुड, द वॉल्स आर नॉट क्लीन, व्हाट इज ओयो गोइंग टू डू हियर? आकाश खरे अपना माइक बंद करें प्लीज. Oyo will not deal with that hotel. सॉरी, Oyo will not deal with that hotel. लेकिन केस में तो लिखा है कि डील करते हैं ऐसे होटल्स के साथ भी, मॉडल है, बिजनेस मॉडल है उनका. कितने बार केस पढ़ा आपने? तो एक बार. बेटा एक बार में इतना इंफॉर्मेशन नहीं आ सकता, यू आर सपोज टू रीड इट एटलीस्ट ट्वाइस. Okay. केस में दिया हुआ है वो क्या करते हैं? Good morning, everyone. My name is Rahul Pawar. I am present to presentation launch of Oyo. In May 2013, prevented over two Oyo rooms of launch. First is problem of centralization. Problem of centralization. The idea of centralization problem is that we can save information, cost, elements, and both use same standard. The complexity राहुल of the पवार, problem. राहुल पवार बेटा रुको. स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? सर रूम का स्टैंडर्ड. तो क्या है रूम का स्टैंडर्ड? थोड़ा सा विस्तार से बताएं जल्दी. सर एसी, टीवी, टेबल, बेड्स. सो क्या होता क्या है? क्यों स्टैंडर्डाइजेशन की क्यों बात कर रहे हैं? प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन क्या है ये? सर सर्विस देते ना, सर्विस प्रोवाइड करते कस्टमर को. ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन का क्या इशू आ रहा है बेटा यहाँ पे? अच्छा राहुल एक बात बताओ, केस कितने बार पढ़ा बेटा? सर 2 बार. 2 बार पढ़ा है. बाहर गांव कभी गए हैं? होटल होटल में रुके हैं? यस सर, यस सर. ठीक है, सब जगह होटल एक जैसे मिलती हैं आपको? नो सर, अलग अलग मिलती है. तो क्या अलग अलग क्या मिलती है? फिर स्टैंडर्डाइजेशन क्या मतलब होता है? आप समझ में आ रहा है बताइए. यस सर. सर उन लोगों का रूम सबका अलग अलग होता है. हाँ, तो कस्टमर को हाउसकीपिंग इससे क्या दिक्कत है भाई? सबके कमरे अलग अलग हैं, तो फिर दिक्कत क्या है यहाँ पे? बेटा सब जगह आप जा रहे हो, आप बोल रहे हो फलाना होटल में गए, वहां पे ये सुविधाएं थी, दूसरे होटल में गई अलग सुविधाएं थी, सब जगह सुविधाएं अलग अलग है, तो फिर कस्टमर को इससे प्रॉब्लम क्या है? फिर यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है, ये पूछ रहा हूँ. सर बस ये है कि वहाँ पे कम ज्यादा होता है रेटिंग में. तो फिर हमें क्या करना चाहिए? स्टैंडर्डाइजेशन क्यों करना चाहिए? सर ओयो नॉर्मल गेस्ट के लिए बना है. ठीक है, नॉर्मल गेस्ट के लिए बना है बेटा, लेकिन हम स्टैंडर्डाइजेशन करने की क्यों बात कर रहे हैं? व्हाई डू वी नीड टू डू स्टैंडर्डाइजेशन? सर केस को अगर स्टैंडर्ड मेंटेन करना जरूरी तो होटल को भी करना जरूरी रहेगा ना, स्टैंडर्ड मेंटेन. तो
ठीक है, चलो गेस्ट को ठीक है। अच्छा, किसी भी होटल में रिलायबल स्टे एट एक्सपीरियंस, इसका क्या मतलब होता है? रिलायबल का एक्सपीरियंस है सर, अ गेस्ट एक्सपीरियंस इज इंटरेक्टेड बिटवीन एन organization and guest and change to give them something rely on like our trust and give them the best experience of stay. हाँ, आगे बताओ। तो क्या होता है, कैसे रिलायबल कैसे हो कि कस्टमर के लिए एक्सपीरियंस अच्छा मिले? सर अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसके लिए। तो क्या होती है अच्छी सर्विस के मायने बताएं, क्या क्या चीजें आती है सर्विस में? हाउसकीपिंग हाउसकीपिंग ठीक है, और? और सर खाने की सर्विस। आप क्या कुछ देख के पढ़ रहे हैं या कोई आपकी मदद कर रहा है सामने, जो आपको बार नो बार कुछ सर, कंटेंट दिखा रहे हैं? नो सर, नो सर। तो सामने देखिए, बार बार आंखें ऊपर नहीं करना है आपको। यस। ओके सर। हाँ जी। आ, तो कैसे विश्वास करें कस्टमर की मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होगा ओयो के साथ? हाउ डू आई बिलीव दैट? आप कैमरा की तरफ देखिए। यस सर। यस। राहुल पवार। सर गेस्ट को समझाएंगे क्या कि क्या समझाएंगे? होना चाहिए सर्विस में। तो क्या होना चाहिए, क्या मिलेगी सर्विस में? ओयो क्या बोलता है अपनी सर्विस में? सर ओयो क्या बोलते हैं अपन को, रूम प्रोवाइड करता है और फैसिलिटी एसी प्रोवाइड करता है, टीवी प्रोवाइड करता है, बेड अच्छे होते हैं उसके। ओके, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट स्लाइड स्विच करें। हु इज रनिंग द स्लाइड्स? स्विच ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब ये ऑपरेशंस के बारे में बताएं। अक्वायरिंग रूम्स, क्या होता है सर ये अक्वायरिंग रूम्स? Aquarius room Oyo is obtained rooms to make it business grow and within it reach, बिजनेस बढ़ाने के लिए सर। अच्छा, समीर डाडलानी माइक म्यूट करना। रूम्स की ऑडिट कैसे करता है? सर रूम्स के ऑडिट, रूम ऑडिट कीप टू प्रोसेस of registration and housing on track, provide they conduct at the right time. तो कैसे करता है ऑडिटिंग, कैसे होती है रूम्स की? सर total number of rooms and divided by total number of guests. है? ये कहाँ से पढ़ा आपने? सर होटल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता था तो वो बताया। हम अच्छा, केस के बारे में बात कर रहे हैं। केस के बारे में बात कर रहे हैं क्या? यस सर, वही क्या कि ऑडिट कैसे करता है तो वही मैं बता रहा था सर। तो इसमें ऑडिट ऐसा ही होता है। सर ओयो में भी ऐसे ही होता होगा, रेवेन्यू तो ऐसे ही होता। आपने केस कितनी बार पढ़ा है? सर 2 बार। 2 बार? केस में यस कहीं सर। लिखा हुआ है ऐसा? यस सर। जो आपने बताया ऐसा कहीं लिखा हुआ है केस में? नो सर, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो मैंने अपने तरीके से बताया है। अपने तरीके से बताया। राहुल, स्केलिंग अप का क्या मतलब होता है? जी सर। स्केलिंग अप लिखा है पॉइंट यहाँ पे सेकंड लास्ट, उसका मतलब बताइए। स्केलिंग का मतलब सर, ओयो इज स्केलिंग अप बिजनेस मीन्स इट सेटिंग अ स्टेज टू एबल एंड सपोर्ट ग्रोथ इन अ कंपनी, इट क्या में कुछ हैविंग। राहुल कुछ देख के पढ़ रहे यस हैं सर। बेटा आप क्या देख के पढ़ रहे हो? सामने देख के बात करो ना। सर सामने ही तो देख रहा हूँ कैमरे में ही। बस ठीक है, आप रुको। अब मुझे बताओ स्केलिंग अप का मतलब क्या होता है हिंदी में? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी भाषा में बताइए। सर बिजनेस को ग्रो करते, ऊपर बढ़ाते। ठीक है, कैसे ग्रो करेगा ओयो? कैसे ग्रो कर रहा है? पहले क्या कर रहा था, आगे क्या करने वाला है? अब इस विषय पे बताएं मुझे, स्केल कैसे कर रहा है? सर फ्रेंचाइजी बढ़ाएगा तो उसका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, फ्रेंचाइजी नहीं बढ़ रही, अब आगे क्या करना है? सर अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसके लिए। सर्विस प्रोवाइड तो करता ही है ओयो, फ्रेंचाइजी करे या कोई भी मॉडल यूज करे। मैं बोल रहा हूं आगे स्केल कैसे, व्यापार कैसे विस्तार करे? सर फ्रेंचाइजी बढ़ानी पड़ेगी और सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी, फिर वो आगे जाके ग्रोथ करेगा। बेटा एक बात बताओ, केस में सारी चीजें दी हैं जो पूछ रहा हूं मैं, आगे क्या करेगा वही तो मैं पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप बार बार वही चीज बोल रहे हो। सर नहीं पता सर अच्छे से ये वाला
पॉइंट। बेटा हर पॉइंट पे वही है आपका, ये नहीं पता होटल की रैंकिंग कैसे होती है? सर रैंकिंग ओयो हैज पार्टनर्ड बेटा आप कुछ विथ देख के सुनो मेरी बात, आप जो भी देख के पढ़ रहे हो आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूं डायरेक्टली जो पॉइंट लिखा उसको मुझे समझा दो अपनी भाषा में, इट यस विल सर, बी यस इजी। सर। वहां पे जो आपका प्रेजेंटर वाला विंडो खुला है ना जिसको देख के आप पढ़ रहे हैं, कृपया उससे ना पढ़े, डायरेक्टली मुझे जवाब दें। रैंकिंग ऑफ होटल्स कैसे होता है? सर जो ओयो के जो पार्टनर है, कौन है पार्टनर? सर जो फ्रेंचाइजी है ओयो की, हाँ सो तो वो उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे उस हिसाब से। चलो अब एक उसका सेकंड रुको, आप बोल रहे हो ओयो का जो फ्रेंचाइजी है वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, मैं बोल रहा हूँ मैं नंबर वन होटल हूं, तो क्या दुनिया मानेगी? नहीं, ओयो बोलना चाहिए। तो ओयो कैसे करेगा, रैंक कैसे करेगा होटल की? सर फैसिलिटीज देगा वो उस तरीके की। बेटा थोड़ा विस्तार से बताओ। सर अच्छा एक बात बताओ, एमबीए कॉलेज में एडमिशन लिया, राइट? यस, कॉलेजेस यस सर, बहुत सारे हैं, अगर कोई यस कॉलेज बोलता है मैं बेस्ट कॉलेज हूं तो आप मानोगे नहीं मानोगे? तो कौन बोलता है, कैसे पता चलता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की सर्वे होता है। इसी प्रकार से ओयो कैसे बोल रहा है कि ये होटल अच्छा है, रैंकिंग कैसे करता है, उसका क्या सर। मैकेनिज्म है? सर आप उसको समझ में आ दूसरे रहा है कॉल प्रश्न? हाँ सर, उसको दूसरे ब्रांड के हिसाब से कंपेयर करेंगे। अरे बेटा कंपेयर करेंगे लेकिन रैंकिंग कैसे करेंगे? Sir, according to feedbacks. Samir, the question is being posted to Rahul Pawar. Let him answer. I will get back to you. Don't worry. I thought he's my team member, so that's why I See, asked this him. is not WWF where you suddenly enter the ring and help your teammate. We are there to take care of this. When Okay. question is being posed to you, you need to answer. Let Mr. Rahul Pawar answer the question at the moment. Okay? Yes, Rahul. रैंकिंग कैसे करता है ओयो अपने होटल्स की? सर सर केस के फील्ड में हाँ, फीडबैक, केस के फीडबैक। कौन से फीडबैक, कैसे फीडबैक? सर अच्छे वाले फीडबैक होंगे। फीडबैक में कितने सीज हैं? स्टार रेटिंग के हिसाब से सर, स्टार रेटिंग। फीडबैक में कितने सी हैं? यस सर। फीडबैक में कितने सी हैं? केस स्टडी में सब दिया है बेटा, केस पढ़ा नहीं है इट सीम्स आपने भी। सर एक सीए। नाम बताइए उस सी का, क्या नाम है? नहीं, 3 सीज। सर याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं ओके, आ नेक्स्ट वी हैव आकाश खरे। राहुल पवार, एक और क्वेश्चन आपसे। यस सर। उसमें क्रॉसिंग का क्या मीनिंग है? क्रॉस सी का? क्रॉसिंग क्रॉसिंग सर जब आप क्रॉसिंग का रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो मतलब रैंकिंग पे आप एम्फेसाइज कर रहे थे, तो उसमें क्रॉसिंग का क्या मीनिंग है? सर क्रॉसिंग का सर नहीं पता सर, क्रॉसिंग का। रैंकिंग की बात तो आप ही ने शुरू की थी। सर ने सर पूछा था इसलिए मैंने थोड़ा बताया था रैंकिंग का। आपने लिखा है ना उसमें, यस सर। रैंकिंग आपने लिखा हुआ है। आपने पॉइंट लिखे हैं ना, अक्वायरिंग द रूम, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑडिटिंग, रैंकिंग, स्केलिंग अप, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कल्चर। यस सर। आप ही का पॉइंट तो आपसे पूछे जा रहे हैं, आप ही की स्लाइड है ये। सर सर वो रैंकिंग में क्या बोलते हैं, ओयो अपना जो रहता है नहीं फ्रेंचाइजी बढ़ाता है नहीं 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 आगे। नहीं नहीं, हम केस के अंदर रख के बात कर रहे हैं, उसमें कितने सी हैं और कितने क्रॉसेज हैं। सर नहीं राहुल पता। पवार, केस में सारी चीजों का ब्यौरा दिया हुआ है बेटा, केस आपने पढ़ा नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, सब में कुछ आप अंग्रेजी में दो चार लाइन बोलते हैं, उसका देसी भाषा में अगर आपसे समझाने बोल रहा हूं तो आप नहीं समझा रहे हैं, आप गोल गोल घुमा रहे हैं, प्लीज डोंट डू दिस। ओके, आकाश खरे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, आकाश खरे। आकाश खरे, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आकाश खरे, अनम्यूट करें अपने आप को बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
Akash, unmute yourself. Yes, sir. Okay. My name is Akash Khare. I would like to explain business model. May Akash, I understand that you have prepared this particular slide. Value proposition क्या है ओयो रूम्स का वो बता दें हमें. सर वैल्यू प्रोपोजन ये है कि वो कस्टमर को अच्छी से अच्छी सुविधा दे सके. तो वो सुविधाएं क्या हैं? सर जैसे कन्वीनियंट ओयो कस्टमर के लिए कन्वीनियंट है बिकॉज ओयो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस प्रॉपर्टी की जिसमें कस्टमर स्टे करता है. और कई बार हॉलीडे पैकेजेस और डिस्काउंट को अपने मेंबरशिप को जो विजार्ड मेंबरशिप होती है उसको डिस्काउंट भी देता है. और मतलब वीकेंड्स पे और फंक्शन फेस्टिवल्स पे हॉलीडे पैकेज प्रोवाइड करता है. और हेजल फ्री रूम बुकिंग, ये हेजल फ्री रूम बुकिंग एक्सपीरियंस देता है क्योंकि ओयो की जो वेबसाइट है और मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें सिर्फ 3 क्लिक में मतलब कस्टमर रूम बुक कर लेता है अपनी पसंद का. अच्छा आकाश जी सर. प्रीवियस आप क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में हैं थ्रू आउट, मुझे पता है 3 C's क्या है बेटा जो रूम रैंकिंग में मदद करते हैं. सर रूम सॉरी सर बट मैंने वो नहीं पढ़ा. क्यों नहीं पढ़ा? भूल गया उसे. नहीं फिर भी अगर मेरे को आप वैल्यू प्रपोजिशन दे रहे हैं, कस्टमर कैसे विश्वास करे कि आपका रूम सही है, कस्टमर कैसे विश्वास करे जो गुणवत्ता आप दे रहे हैं वो सही है, उसके लिए तो सी होना चाहिए ना. वो सी क्या है? सर वो लोग एक ऑडिटेड टीम प्रोवाइड करते हैं. जो मतलब रूम्स की ऑडिटिंग करते हैं, होटल्स की रूम ऑडिटिंग करते हैं जिसमें सर्विस स्टाफ सर्विस कैसी सर्विस दे रही है, क्लीननेस और कस्टमर रिव्यूज जो प्रीवियस कस्टमर होते हैं उनके रिव्यूज नोट किए जाते हैं और जिसके बिहार पे मतलब रैंकिंग होती है. ओके. और एरिया और डी पॉइंट ऑफ ऑक्यूपेंसी कि उस टाइम पे या उस दिन पे कितने मतलब रूम बुक्स हैं. ओके. अब मुझे ये बताएं, मोस्टली होटल्स में स्टाफ यूजुअली देखा जाता है उनको कस्टमर वो बहुत ही अनएजुकेटेड फॉर्म में रहते हैं, रॉ फॉर्म में रहते हैं. सो ओयो ने इसके लिए कुछ किया था, केस में दिया हुआ है? हाँ सर, उन्होंने ऐसे जो मतलब रूरल एरिया से जो स्टाफ आता था उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई गवर्नमेंट से मतलब कॉलेब करके 2016 में, जिसमें एक नॉन मैनेजरल प्रोग्राम चलाया गया जिससे कई लोगों को नौकरियां मिली. अच्छा, अब बस मुझे एक एस्पेक्ट बताएं, ओयो पहले क्या करता था, अब क्या कर रहा है और आगे चैलेंज क्या था, केस में दिया हुआ है, तीनों एस्पेक्ट को बताएं क्या है ये. सर ओयो जब स्टैब्लिश हुआ था तो उसका मेन मोटिव था बजट रूम प्रोवाइड करना कस्टमर को जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है अपने देश की, उसे बजट रूम प्रोवाइड करना था जो बजट रूम भी हो और पूरे मतलब स्टैंडर्ड्स भी हो उसमें जो अदर उसमें स्टैंडर्ड उसमें होते हैं होटल्स में होते हैं. और कुछ प्रॉब्लम्स आई उनसे बीच में, जो ऑपरेटर्स होते हैं होटल ऑपरेटर्स हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे सही से. कुछ लोगों ने मतलब टाई अप भी तोड़ दिया था ओयो के साथ. तो ओयो ने अब उनको एक विश्वास दिलाया है कि आगे चल के उनसे जो भी गलतियां हुई है, जैसे कि कई बार ऐसा होता था कि ओयो डायनामिक टाइम में प्राइसिंग बहुत कम कर देता था. डायनामिक प्राइसिंग आपने बोला, इसका मतलब क्या थोड़ा बताएं फिर उसके बाद आगे बढ़ें. डायनामिक प्राइसिंग सर मतलब दिन में 4 बार मतलब हफ्ते में 4 घंटों में चेंज होते रहते थे चार्जेस. मतलब अगर ऑक्यूपेंसी नहीं है तो उस हिसाब से भी देखा जाता था कि अगर ऑक्यूपेंसी नहीं है तो रूम रेट कम कर दिया जाता था ताकि कुछ तो मिले, मतलब खाली ना रहे रूम. तो उस हिसाब से डायनामिक मतलब उन्होंने प्राइसिंग को करा जो 4 घंटों में चेंज होते रहते हैं. अगर ऑक्यूपेंसी ज्यादा है होटल की तो रेट थोड़ा बढ़ जाता है, अगर ऑक्यूपेंसी कम है तो रेट थोड़ा घट जाता है. वो हर 4 घंटे में यूटिलाइज होते जाता है सर. हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हेलो 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 आकाश बेटा, अब आप बताएं फ्यूचर के चैलेंजेस क्या हैं इसमें. सर फ्यूचर के चैलेंजेस ये हैं कि जो जिनसे टाइप किया गया है होटल ऑपरेटर से वो बने रहे
और जो आने वाली जैसे कि लोग अब हेल्थ के बारे में ज्यादा वो हो चुके हैं, मतलब अवेयर हो चुके हैं, तो प्रॉपर हाइजीनिंग रहे होटल्स में, और जो स्टाफ है वो हमेशा वेल एजुकेटेड रहे। नहीं, ओयो के लिए एक चैलेंज था, एयरबीएनबी जैसा कुछ कर रहा है, सो कुछ प्रॉब्लम आया था जिसको फॉलो करना चाह रहा था वो, उसके सर बारे में एयरबीएम वो एक होटल चेन नहीं चलाता था एक्चुअली, जो लोग रहते थे, मतलब जो सिटीज थी उसमें कुछ जैसे कि मेरे पास एक उदाहरण के लिए, मेरे पास मेरे 2 फ्लोर है, एक फ्लोर खाली पड़ा है, तो मैं उसे एयरबीएम की प्लेटफॉर्म पे डाल देता था, जिससे एयरबीएम की साइड से मुझे उस पे मतलब एक रेंटल यूज के लिए मैं यूज कर सकता था। मतलब वो लोगों को अप्रोच करते थे कि आप रेंटल यूज, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को रेंटल यूज में दे सके। तो ओयो ने भी यही करना चाहा, पर उसके सामने चैलेंजेस ये थे कि हम इंडियंस जो हैं वो दूसरों, अगर किसी अजनबी के घर पे जाएंगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसीलिए हम कई बार ऐसा होता है कि हम वहीं जाते हैं जहां हमारे रिलेटिव रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं। तो ये चैलेंज है इंडिया के साथ सर ओयो के लिए। हेलो हेलो सर, एम आई ओके। ऑडिबल? नेक्स्ट वी हैव बॉबी मोटवानी। बॉबी, बॉबी ओयो एसेट मैनेजमेंट और ओयो होम्स के बारे में बताएंगे प्लीज। सर हाँ जी, स्टार्ट करें। प्रकाश अपना माइक म्यूट करें, बॉबी स्टार्ट करें। Sir, in Oyo Asset Management, Mr. Ritesh Agarwal in 2017 announced the launch of OM with funding of rupees 200 million from SoftBank and other investors. In OM, sir, he leased entire properties occasionally for rooms. बॉबी, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। ये जो अनस्क्रपलेस होटलियर्स हैं, एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे? ओयो एसेट मैनेजमेंट सेटअप क्यों किया, और ये रिफर्बिशमेंट या स्टाफ इंटरेक्शंस ये सब क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है, ये थोड़ा समझाएं प्लीज। Sir, can you repeat? बेटा, ये स्लाइड में लिखा है टू कर्ब द प्रॉब्लम ऑफ अनस्क्रपलेस होटलियर्स, या एसेट मैनेजमेंट क्यों बनाना पड़ रहा है ओयो को? व्हाई ओयो इज गोइंग फॉर सेटिंग अप एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जहां पे होटल लीज पे देना है, रिफर्बिशमेंट करना है, या Sir, for customer yes, sir, for customer satisfaction. बॉबी, इसमें अनस्क्रूपुलस कौन है? Yes, sir. अनस्क्रूपुलस का मीनिंग क्या है? Sir, I don't know. आपने स्लाइड में डाला हुआ है। Sir, this is not my slide. This is Niket's slides. बेटा, स्लाइड किसी का भी हो, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना। ये थोड़ा ना बोलेंगे फलाने का स्लाइड है, प्रेजेंटेशन आपके ग्रुप का है, तो पूरा पता होना चाहिए प्रेजेंटेशन। सर, इनको थोड़ा सा याद दिला दें कि आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस थे कि Yes, sir. केस को टुकड़ों में बांटकर और हिस्से नहीं बांटना उसके। Yes, sir. केस सभी को पूरा पढ़ना है, सभी को पूरा अंडरस्टैंड करना है, और किसी को भी बोला जा सकता है कि केस आप ओपन करो, अब आप बोलो, अब आप बोलो। Yes, sir. Is it? ऐसा बताया गया था आपको शुरुआत में ही Yes, sir. कि ये मेरी स्लाइड है, ये मेरी स्लाइड नहीं है। ये Yes, करने sir. के लिए मना किया गया था ब्रीफिंग में। Yes, sir. ब्रीफिंग में मना किया गया था कि नहीं? Sir, मना किया गया था। तो फिर आपने ये क्यों बोला कि ये स्लाइड मेरी नहीं है? When you are presenting, it is your baby. Yes, sir. An entire case is your baby. Yes, sir. An entire case is everybody's baby. केस कितने बार पढ़ा है बॉबी? Sir, one time. वन टाइम पढ़ने से समझ में आ जाएगा? मुझे तो समझ में नहीं आता, किसी को भी नहीं समझ में आएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू रीड इट एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार पढ़ें। केस की कॉपी का है अपनी?
Sir, with me. ये इंटरनल रिफर्बिशमेंट ये क्या है? Sir, internal refurbishment means that what? Refurbishment. Yes, sir. Sir, what changes he wants to make in hotels rooms? That what change he needs to replace is in hotels to make good and for convenient for the customers. Okay. नेक्स्ट स्लाइड रन करें। ओयो होम्स क्या होता है बॉबी, एक्सप्लेन करें, क्यों ओयो होम्स पे स्विच कर रहे हैं ये लोग? अरे स्लाइड पढ़ना नहीं है, आंसर करो क्वेश्चन। Yes, sir. Answer. Sir, Oyo homes पे ये लोग इसलिए ताकि sir sometimes some people want to acquire rooms for more day basis, like for 1 month and for 2 months. कौन सी सिटी में हो रहा था ये कहाँ पे है? केस में भी दिया हुआ है। सर गोवा। अच्छा, तो क्या था गोवा में, क्या सिस्टम है? Sir, they are providing homes for more than 1 day stay, or they are providing it to a person that gives for 1 month. They give लेकिन इसमें homes चैलेंज क्या है, प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं आप इसमें? बेटा वो जो स्लाइड है उसमें कुछ लिखा नहीं है, आपने बताना है, केस के अंदर दिया हुआ है सब चीजें। Yes, इसीलिए बोलते हैं केस को 2 दफे 4 बार पढ़ो। sir. ऋषभ दुबे, यस सर। स्लाइड आगे बढ़ाइए। ओयो टाउनशिप और ये तीनों चीजें क्या है, तीनों में डिफरेंस बताइए क्या है? सर ओयो रूम्स बेसिकली जो बेस्ड होता है वो एक बेसिक रूम होता है कैमरा जिसमें चालू करो अपना। बेसिक रूम्स होता है। जो ओयो रूम्स जो रहते हैं बेसिक रूम देते हैं जिसमें आपको बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड करी जाती है और सिंपल गैजेट्स एंड। कैमरा चालू करें बेटा अपना। यस सर, यस सर। सर आई एम विजिबल नाउ? नो, वेट सर, देयर इज सम नेटवर्क इशू ओवर देयर। चलिए बताइए क्या बोल रहे थे आप, ओयो रूम्स और टाउनशिप में क्या डिफरेंस है? यस सर, आई एम सेइंग दैट ओयो रूम्स में क्या रहता है, बेसिक रूम्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जिसमें बेसिक अमेनिटीज आपको दी जाती हैं और रहते हैं, हर चीज नॉर्मल रहती है, उसकी रेटिंग्स कम रहती है और जो अपना एक्सपेंस होता है, प्राइसेस वगैरह होता है, ये सब लो रहते हैं। और जिसके बाद अब टाउनशिप की बात करें तो टाउनशिप में जैसा रहता है कि जो रह चुके हैं काफी और ग्रो कर रहे हैं ओयो के साथ, अब उनको जैसे पहले वो यंगस्टर थे और अब उनके पास अच्छी खासी फैमिली है खुद की, तो उनको वो करना है, क्या नाम से, उनको कहते हैं अब एक अच्छा स्टैंडर्ड चाहिए और एक अच्छा क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन होटल चाहिए, तो उनके लिए ओयो ने टाउनशिप प्रोवाइड करवाई गई है। इसमें आपको सारी फ्री ब्रेकफास्ट से लेके एवरी गैजेट्स अपॉर्चुनिटी सब दी जाती हैं और सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और सब चीज काफी इजी हो जाती है। ओयो टाउनशिप का टारगेट, ओयो टाउनशिप का टारगेट गेस्ट ग्रुप कौन सा है? टारगेट गेस्ट ग्रुप ओयो टाउनशिप फैसिलिटीज के लिए किसको टारगेट करते हैं? सर टारगेट ये लोग करते हैं बिजनेस, कमर्शियल्स और जो यूथ होती है उसको, यूजुअली बिजनेसमैन जो रहते हैं उनका मेन एम करता है उन पर। आपने कैमरा बंद क्यों कर रखा है? सर मैं अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ बट वो हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है सर, एक सेकेंड, लेट मी चेक। अच्छा, ये मिनिमम प्राइसिंग गारंटी क्या है ये ओयो में? 1 सेकेंड सर। सर नाउ आई एम विजिबल? यस, मिनिमम गारंटी प्राइसिंग क्या है बेटा? मैम मिनिमम प्राइसिंग सर इसमें क्या था कि पहले जो ओयो था जब इनिशियली आया था तो वो लोग क्या करते थे कि उनने रेंटल बेस्ड पे कुछ रूम्स ले लिए थे पार्टिकुलर होटल्स के, तो उसमें वो चाहे बुकिंग हो चाहे ना हो वो उनको मंथली बेस देते थे एक्सपेंडिचर। फिर देन उन्होंने वो चेंज करके डायनामिक प्राइसिंग मॉडल स्टार्ट कर दिया। ओके, यस सर। ओयो में 3 C's क्या है बेटा?
प्रॉमिस में? Promises, sir, predictability, unreliability, and standardization. ये 3 C's हैं. 3 Sorry, sir. 3 C's of standardization. Sir, 3 C's है. Ranking. Sir, customer reviews. उसके बाद और and customer reviews and availability of. पढ़िए मत. पढ़ना नहीं है. यस सर, पढ़ नहीं रहा सर. कस्टमर रिव्यूज हैं और उसके बाद क्लीन कंपैटिबल रूम्स एंड. पढ़िए मत. आई एम नॉट रीडिंग. कैमरा की तरफ देखिए आप. यस सर. And what is the meaning of crosses here? Yes sir, what? होटल रैंकिंग में crosses का क्या मीनिंग है? होटल रैंकिंग प्रोसेस क्रॉस लगाते ना, राइट एंड रॉन्ग वाला क्रॉस. Sorry sir, I have no idea about it. No idea about? Yes sir. केस में है जी. केस में है. केस स्टडी. केस में है, केस स्टडी में है. यस सर है. तो फिर बताइए. प्लीज पुट योर कैमरा ऑन. सर इट इज ऑन. इट इज ऑन बट यू आर अच्छा, एक बात बताओ, ये केस में क्लियर आउट दिया हुआ है इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कस्टमर्स का ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द टाइम पीरियड कैसे हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस. सर कस्टमर को जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ते जा रही हैं और वेजेस कम करते जा रहे हैं, रेट्स कम करते जा रहे हैं, तो कस्टमर को कम प्राइस में और कम एक्सपेंस में काफी कुछ चाहिए, तो इस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सर. ओके, मिस्टर निकित नेमा. Aman Singh, please turn off your mic. Hello. Yes, Niket, you are audible. Yes, sir. Please turn your camera also on. Sir, my camera is on. स्लाइड आगे बढ़ाइए, स्लाइड रन करो आगे, बस रुको आगे. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. ओके निकित, मुझे बताओ, इसमें कोई एनालिसिस नहीं है? एनालिसिस इन द सेंस कोई भी टूल यूज नहीं किया? आप लोगों को सिखाया गया था, इतने सारे टूल्स हैं, SWOT एनालिसिस है, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल है, कोई टूल क्यों नहीं यूज किया? सर उसमें सारी स्लाइड्स में टॉपिक्स कवर किए हैं सर, यही कुछ है एनालिसिस वगैरह. एक बात बताओ बेटा, जैसे केस स्टडी अपन एनालिसिस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, केस में जो स्टोरी दी हुई है उसी स्टोरी को स्लाइड में लगा के बताना, इज दैट एनालिसिस? यू आर सपोज टू कम विद सम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन की हो क्या रहा है. देखो, केस पढ़ना अपनी जगह है, उसके बाद उसको एनालाइज करना कि हम आगे कहां जा रहे हैं, उसको हम कैसे वर्कआउट करेंगे, दैट इज समथिंग डिफरेंट. इन बिटवीन लाइन हमें रीड करके कुछ उसमें से एनालिसिस ड्रॉ करना है. यहां पे आपने रिकमेंडेशन में मेंशन किया है, इट हैज टू इंक्रीज सिक्योरिटी मेजर्स, प्रोवाइड रूम्स ऑन आर्मी बेसिस, मस्ट अलाउ एंट्री ऑफ आउटसाइड फूड, मस्ट प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री लंच एंड डिनर. ये सब चीजें तो ओयो दे ही रहा है, तो इसमें रिकमेंडेशन में आपने नया क्या लाया? ये तो ऑलरेडी है, ये तो ओयो के प्रॉमिस है. सेफ्टी मेजर है, कमरे आपको रूम्स मिलते हैं, आउटसाइड फूड यू कैन कैरी इट, इट्स अप टू यू. लेकिन ओपनली आप बाहर से लेके जाएंगे, जोमेटो और ये सब लाकर डिलीवर करेंगे, दैट इज नॉट बीइंग परमिटेड, बट मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स आर देयर.